Hello everyone. Today I am going to discuss about the risk in international business. This is a part of international business series. Risk is a very important part in international business because everything is depend upon the profit or everything is depend upon the explore in the market. But some of the things are there, like when we discuss about the risk means uncertainty is there in the market. Then let's start with the topic. Business risk refers to the possibility of not proper profit or even the losses in the business because of uncertainties. Because whenever we go for the business and the environment is totally uncertain, environment is dynamic, when we discuss about the international market, then we are not going to judge about the profit before hand, we are not going to judge about the things in the market, what is going to happen in the market, so that creates a risk in the market. Business risk is different from the loss. It is a possibility of loss. Business risks are of diverse nature and arise due to various factors. When we discuss about the business risk, like uncertainties are there are the various factors behind that. Business risk arise due to unfavorable change in the various component of business environment. When we discuss about the business environment is a dynamic term, that is like the environment is changed second to second. Then we have to collect the information and we have to make planning according to that, because of the unfavorable changes are there and various factors behind that. So business risk is the uncertainty about the things, uncertainty about the profit or loss. Business risk can be defined as an unfavorable change in the internal and external component of business environment which may pose threat in the achieving business objective. Like जब भी हम business risk की बात करेंगे हम कहेंगे unfavorable changes there, whether that is the internal, whether that is the external part of the organization, and that creates a uncertainty. Business risks refer to a possibility that a business unit will not able to accomplish its established goal. यानी कि जो हमारा business unit है उसको जो हमने objective mind में लेके चल रखे हैं तो उसके according हमें वो achieve नहीं हो पा रहे because of scenario changing, because of the things are getting change in the market. So that raise the risk. Various kind of risks are there when we discuss about that, whether that is internal, whether that is external, whether that is related to supplier. Various kind of risks are there. Let's discuss internal risk within the organization, whether that is related to our objective, whether that is related to policies, strategies. These are the internal risks are there. Mission and vision is there. Second is operating and micro level risk. Like जब हम micro level risk की बात करते हैं हम कहेंगे कि हमें small level पे कोई ना कोई, operating level पे कोई ना कोई risk वहाँ पे आ रहा है. Supply of inputs supplier की तरफ से हमें प्रॉब्लम आ जाता है, कंपटीशन हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है मार्केट के अंदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का वहाँ पे चेंज हो रहा है, जितने भी मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं यानी कि जितने एजेंट्स हैं दे आर क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, पब्लिक रिसेंटमेंट हमें वहाँ पे मिलता है, लाइक ऑपोजिशन, या हम कहेंगे कि पब्लिक इज़ नॉट लाइकिंग द थिंग्स इन द मार्केट. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल मार्केट, like a different kind of culture is there and that creates a problem from the public, from the people side also. When we discuss about the macro level risk, like one is micro, that is a small level risk, and second one is macro level risk. In macro level risk, that is not under our control and we have to make the policies to control that at a little bit. Like when we discuss about the economic risk, when we discuss about the inflation is there, when we discuss about the recession is there, interest rates are going high in the market, these kind of risk are the economic condition and economic policies are there in the market, or the risk that is created by the economic system. Political risk is there, technology risk is there, this kind of risk is there in the market in today's era because the new innovations are there in the market and that creates a software or technology type risk. Natural risk is there, global risk is there, social culture risk is there, like the various kind of risk is there in the market. When we discuss about the international business, specifically there are two kind of risk. One is country level risk and one is political risk is there. Country level risk, when we discuss about what are the problem that is raised by the country, like whenever MNC enter into a different market or whenever a subsidiary enter into a different market, the different kind of risk they are facing in that market, whether that is a language, whether that is related to culture, whether that is related to government, whether that is related to our economic system, these kind of risk are there. Then the risk is divided into two parts mainly, one is country and one is political level risk. Let's discuss country level risk.
when we discuss about the country level risk, there are various kind of risk are there, because यहाँ पे हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री के अंदर हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात भी करेंगे, हम कल्चर की बात भी करेंगे, हम सोसाइटी की बात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात भी करेंगे, लाइक सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन वन मार्केट। देन हम यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट जो बात करेंगे डीवैल्यूएशन की बात करेंगे, हम करेंसी की बात करेंगे। अगर आप किसी एक होता है डीवैल्यूएशन, एक होता है एप्रिसिएशन इन द मार्केट, ठीक है। अब करेंसी की जब भी हम दूसरी मार्केट में एंटर होते हैं तो हम मेन डील किससे करेंगे, हम करेंसी से डील करेंगे, यानी कि हम एक्सचेंज रेट से वहाँ पे डील कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट अगर एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है या डीवैल्यूएट गवर्नमेंट उसे कर देती है, उसकी वैल्यू को वहाँ पे कम कर देती है एज़ कंपेरिजन टू अदर करेंसी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक रिस्क अराइज हो जाएगा दूसरी फर्म के लिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़, अब हम कहते हैं कि 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी ऑफ द डॉलर, तो वहाँ पे एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पे बनता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंट्री के अंदर एप्रिशिएशन हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है। अच्छा, डेप्रिशिएशन हो गया जब हम डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारी जो करेंसी का वैल्यू है वहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाए, यानी कि वी हैव टू पे मोर एज कंपेरिजन टू डॉलर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे डिवैल्यूएट कर देती है किसी ना किसी वजह से मार्केट के अंदर, कि हमने अपनी करेंसी का वैल्यू 82 से 84 कर दिया, यानी कि हमने वहाँ पे डिवैल्यूएट कर दिया करेंसी को। क्यों कर दिया, वहाँ पे एक्सपोर्टर को ज़्यादा वहाँ पे कहीं ना कहीं करेंसी मिलेगा, हमारा इंपोर्ट वहाँ पे कॉस्टलियर हो जाएगा। तो सो मेनी स्टेप्स दैट इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। दीज क्रिएट अ कंट्री रिस्क। सेकेंड इज़ वीक फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात कर सकते हैं। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम रेज, वेदर दैट इज़ अ रिसेशन इज़ देयर, वेदर द वी आर कनेक्टेड विद एवरी कंट्री, सो दैट इफ़ देर इज़ रिसेशन इन वन कंट्री, डेफिनेटली दैट इज़ इफेक्ट द अदर कंट्री ऑल्सो। तो इफ़ वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, दैट ऑल्सो लाइक वी आर सेफ इन दैट कंट्री, तो वी हैव टू टेक दीज थिंग्स आर माइंड, वेदर आर फाइनेंशियल, वट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम वी आर हैविंग। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट हमारा बढ़ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज कोई भी एमएनसी आपकी कंट्री में आ रहा है, उसके बाद टैक्स रेट वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, देन यू हैव टू पे मोर, तो ये भी एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी चेंज हो जाए रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, एनीथिंग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी वहाँ पे आ जाती है। जब इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे वहाँ पे अच्छे नहीं हैं, आप एक फर्म लेके वहाँ पे गए, लेकिन आपका जो आपस में वहाँ पे रिलेशनशिप है, वेदर दैट इज़ गवर्नमेंट मेकिंग अ पॉलिसी, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वहाँ पे हड्डल आ रही है, तो ये सारे के सारे कंट्री से रिलेटेड हो गया। करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारा जो वर्क कल्चर है दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वर्किंग कंडीशन सबसे अच्छा होना चाहिए, सो दैट यू आर वर्किंग देयर विद योर फुल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हमारा वर्क कल्चर अच्छा नहीं होगा, वी आर नॉट वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो दीज थिंग्स आर क्रिएट अ रिस्क। तो हम ये देखेंगे जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इन दैट कंट्री। गवर्नमेंट का बजट है जो वह डेफिसिट तो नहीं है, ठीक है। जो भी हमारा जूरी से रिलेटेड है, हाँ, लॉ से रिलेटेड मशीनरी है, वो हमारी किस तरह की है, हाउ द कोर्ट टेक द डिसीजन। नेबरिंग कंट्री जितना भी हमारा रहेगा उनसे हम लोग का कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब भी कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है या कोई भी फर्म वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स आपका पावर सप्लाई कैसी है, आपका रोड्स कैसी हैं, आपके ब्रिजेस कैसे हैं, टर्मिनल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेदर कंडीशन कैसे है, बिकॉज दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, ठीक है। अगर इस तरह का कैसा कल्चर है वहाँ पे, तो ये सारे के सारे क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमारा कंट्री रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क की। पॉलिटिकल रिस्क की सीधी सीधी बात है, दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट क्रिएट ईच एंड एवरीथिंग, वेदर दैट गवर्नमेंट क्रिएट अ प्रॉब्लम और वेदर दैट इज़ क्रिएटिंग अ अपॉर्चुनिटी फॉर द अदर फर्म, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल पावर ऑल्सो। अब हम देखेंगे कि माइक्रो लेवल पॉलिटिकल रिस्क है या मैक्रो लेवल पॉलिटिकल रिस्क है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसी है कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट कितना हर्डल कर रही है प्रोसेस के अंदर व्हेन यू आर गोइंग फॉर द बिजनेस, करप्शन किस लेवल पे है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, करेंसी कंट्रोल हमारा कैसे है। अभी हमने बात की थी कि डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट कर रही है या डेप्रिशिएशन करेंसी का हो रहा है, लेकिन किस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, नहीं कर रही है। रिपेमेंट ऑफ लोन का क्या सिचुएशन है, ठीक है। जो भी हम लॉ एंड ऑर्डर लेके चल रहे हैं वो किस तरह का है। अब हम बात करते हैं, अब ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि टू काइंड ऑफ रिस्क इज़ देयर, ठीक है। वन इज़
country risk is there, one is political risk is there, and how these things are creating a problem for the country. अब हम बात करें रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस. अगर हम कॉमन बात करें, पॉलिटिकल कर लिया, ये कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी सो मेनी रिस्क आर देयर. कंट्री से रिलेटेड भी हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके बाद भी सो मेनी थिंग्स आर देयर. फर्स्ट वन इज कल्चर डाइवर्सिटी. व्हेन एवर वी मूव टुवर्ड्स अदर कंट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आता है कल्चर. वी हैव टू अडेप्ट दैट कल्चर. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके चल रहे हो तो आपको उस कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उस कल्चर के अंदर वहाँ के लोग उसे अडेप्ट कर लें. ठीक है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितना है कंट्री के अंदर, जोग्राफिकल डिस्टेंस कितना है, आपकी कंट्री और जिस कंट्री में आप जा रहे हो कितना जोग्राफिकल डिस्टेंस है, तो जो आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो उससे इफेक्ट होगा ही होगा. गवर्नमेंट की तरफ से हर्डल कितनी है, टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पे बात करेंगे. फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट की बात मैंने पहले भी डिस्कस किया. जब भी हम बाउंड्री से उस बाउंड्री में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में एंटर कर रहे हैं, तो जब भी हम कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट. करेंसी की हम बात करेंगे. गवर्नमेंट पॉलिसी कितना फेवरेबल चेंजेस आपके वहाँ पे कर रहे हैं या अनफेवरेबल चेंजेस वहाँ पे कर रहे हैं. पॉलिटिकल रिलेशन आपके कैसे हैं. कार्गो रिस्क कैसा है आपका, यानी कि एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में बाय ओशन लेके गए तो आपको कितना रिस्क है उसके अंदर. क्रेडिट रिस्क कितना है, आपने जो भी पेमेंट लेना है दूसरी कंट्री से या आपको पेमेंट वहाँ पे देना है तो आप क्रेडिट की बात करोगे. क्रेडिट फाइनेंशियली हम देखेंगे कि वहाँ पे कितना साउंडनेस है या नहीं है. फॉरेन मार्केट सिचुएशन हम वहाँ पे देखेंगे कैसी है और लोगों का कैसा है उस कंट्री के अंदर, होस्ट नेशन के अंदर, जिस कंट्री के अंदर हम लोग जा रहे हैं. अब बात आती है कि हाउ वी मैनेज द रिस्क, व्हाट आर द टेक्निक्स वी आर यूजिंग फॉर दैट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को. अब कंट्री लेवल रिस्क है, एप्रिशिएशन है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है. फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पॉसिबल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस रिस्क, कि जो भी हमने रिस्क लिया है उसका कितना इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे, वो चीज़ हम वहाँ पे लेके चलेंगे. ठीक है. थर्ड हम लेके चलेंगे अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द रिस्क. अब हमें पता चल गया कि कंटिन्यू रिसेशन इज़ देयर इन दैट मार्केट, कल्चर इज़ इनस्टेबल, एक कल्चर डाइवर्सिटी इज़ देयर इन द मार्केट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ देयर. हमने आइडेंटिफाई कर लिया. सेकेंड स्टेप के अंदर पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क हमारा मेन कौन सा है, कंट्री रिस्क है, किससे रिलेटेड है. पॉसिबल इफेक्ट हम उसके लेके चलेंगे, क्या इफेक्ट है उस रिस्क का, क्या इफेक्ट आ सकता है. जैसे हम कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इंक्रीज़ हो गया, तो हम देखेंगे उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. उस रिस्क को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हम लेके चलेंगे. मॉनिटरिंग करेंगे, हम एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे बनाएंगे और उसको मॉनिटर करना शुरू कर देंगे हम लोग. अब जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट रिस्क मैनेजमेंट. क्यों हमने वो रिस्क मैनेजमेंट किया, उसके बेनिफिट क्या है. अब हमने देख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये रिस्क हो सकता है भाई, उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है. उसको हमने वहाँ कोर्स ऑफ एक्शन लगाना शुरू कर दिया, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी. इससे क्या होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा. ठीक है. जो अमाउंट ऑफ फ्लोज है हमारे वो मिनिमाइज़ वहाँ पे हो जाएंगे. प्रिवेंटिंग सीरियस डिजास्टर्स वहाँ पे नहीं होंगे. अमाउंट ऑफ फ्लो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे जो रेज हो रही थी वो हमारी वहाँ पे कम हो जाएगी. एलोकेट कैपिटल अदर रिसोर्सेज मोर ऑप्टिमल. अब हमारे पास टाइम रहेगा क्योंकि वी आइडेंटिफाई द रिस्क, तो हम जो हमारा कैपिटल है वो एलोकेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे. इससे हमारा सेल्स एंड प्रॉफिट वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा और हम जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज़ करेंगे. हमारा कंपटीशन कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टेज पे आएगा. अब जब भी हम मेज़र की बात करते हैं कि हाउ वी मैनेज द रिस्क, अब हमने ये तो पता कर लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना. हमारा जो फर्स्ट स्टेप था रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, तो उसको हम कैसे करेंगे, इन्वायरमेंटल रिस्क को कैसे मेज़र करेंगे, क्या मेथड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे स्ट्रेटेजिक इशू एनालिसिस मेथड, यानी कि जो स्ट्रेटेजिकल इशू हैं, यानी कि हमने जितने भी फैक्टर्स वहाँ पे स्टडी किए, वेदर इंटरनल एक्सटर्नल है, उनसे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनको एनालाइज कर लेंगे. सेकंड है जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन्स बैठे हैं, हम उनसे वहाँ पे उनके ओपिनियन लेना शुरू कर देंगे कि मार्केट किस तरह का होने वाला है, किस तरह के रिस्क मार्केट में आने वाले हैं. मैंने पहले भी बोला कि मार्केट डायनेमिक है, मार्केट सेम नहीं है. आज हमने जो सोचा है नेक्स्ट डे वो नहीं होगा. सो मेनी डील्स आर देयर, सो मेनी मर्जर्स आर देयर इन द मार्केट. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज़ गोइंग टू चेंज. तो हम वहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन वहाँ लेंगे कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर.
वेटिंग रेटिंग सिस्टम, यानी कि वेटेड रेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम वेट देना शुरू कर देंगे। जैसे हमने कहा कि कल्चर एक हमने वेरिएबल ले लिया, रिसेशन एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे जो जो कंट्रीज़ के अंदर हम लोग जाने वाले हैं हम उसको रेट देना शुरू कर देंगे कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रिस्क हमारे लिए क्रिएट करेगा। इकोनॉमिक टेक्निक की हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को वहाँ पे यूज़ करेंगे, इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे टू आइडेंटिफाई द रिस्क इन द मार्केट। नेक्स्ट है क्रेडिटेबिलिटी मेथड। अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि जिस जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनका क्रेडिटेबिलिटी कैसा है, कितने टाइम में वो लोग हमें जो भी हमने सामान वहाँ पे भेजा है तो उसकी पेमेंट हमें कब तक आ जाएगी। तो ये सारे मेथड्स हम वहाँ पे अप्लाई करना, साउंडनेस चीज़ें देखना शुरू कर देंगे। अब है और कौन कौन से मेथड हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हम डाइवर्सिफाई कर देंगे बिजनेस रिस्क को, यानी कि हम एक ही कंट्री के अंदर नहीं जाएंगे, हम कई सारी कंट्रीज़ के अंदर वहाँ जाएंगे, कंट्री का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेंगे, एंटी करप्शन चीज़ें हम वहाँ पे लॉज यूज़ करेंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस यानी कि कार्गो के थ्रू, जो हमने कहा कि कार्गो इंश्योरेंस हो जाएगा, कार्गो के थ्रू जो सामान जा रहा है वहाँ पे हम उसका भी इंश्योरेंस कराना शुरू कर देंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यानी कि जो इम्पोर्टर देता है, यानी कि आप एक्सपोर्टर हो, सामने वाला इम्पोर्टर आपको अपने बैंक के थ्रू लिख के देगा कि इतने दिन में मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, तो हम LC लेना वहाँ पर, हम लेटर ऑफ क्रेडिट को LC भी कहते हैं, हम वो लेना वहाँ पर शुरू कर देंगे। कोटिंग द प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्टर होम करेंसी, यानी कि जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं तो उस कंट्री में हम क्या करेंगे कि जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर जिस कंट्री से, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, तो कोटिंग द प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्टर होम करेंसी, हम अपनी करेंसी में कोट करना शुरू कर देंगे सो दैट हमें करेंसी का रिस्क नहीं रहेगा। हम कहेंगे कि हम तो इतने रुपए में आपको ये देंगे, तो हमने वहाँ पे अपनी करेंसी को, क्योंकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर हम वहाँ पे कर लेंगे, यानी कि दूसरी कंट्री में जाके हम जॉइंट हैंड कर लेंगे, जॉइंट वेंचर कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, जो पब्लिक हमारे लिए कोई भी ऐसा क्रिएट कर रही है, दे आर नॉट लाइकिंग आर प्रोडक्ट और वेदर अडेप्टेशन मोर इज़ देयर, तो पब्लिक, अगर हम वहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो वो भी वहाँ पर अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो अपॉइंटमेंट है, पर्सन्स का अपॉइंटमेंट है, वो हम क्या करेंगे, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ होस्ट नेशन, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे P नहीं आएगा, हम इसको H लेके चलेंगे। होस्ट नेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हमने अपॉइंट करना है वो हम होस्ट नेशन से ही अपॉइंट करना शुरू कर लेंगे। क्रेडिट स्क्रीनिंग करेंगे जिस कंट्री में हमें जाना है, इन्वेंट्री पे कंट्रोल रखेंगे, अच्छी पैकिंग हम वहाँ पे करेंगे, वर्क इन्वायरमेंट हम सेफ़ देंगे, जो फायर कंट्रोल इक्विपमेंट है वो भी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, गुड रिलेशनशिप हम वहाँ पे बनाएंगे इंडस्ट्रीज़ एंड फर्म्स के साथ। अंडर राइटिंग क्या होता है कि हम वहाँ पे गारंटी लेना शुरू करेंगे, उन्हीं बैंक्स को वहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और इंश्योरेंस फर्म्स को वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज नोबडी वांट टू रिस्क इन द मार्केट। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम टेक्निक्स को यूज़ करेंगे सो दैट वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन द मार्केट एंड वी आर वेरी सेफ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, ब्रीफ चेकलिस्ट फॉर मैनेजिंग रिस्क इन इंटरनेशनल मार्केट। लाइक अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम कंट्री को पूरा का पूरा वहाँ पे सिलेक्ट करके पूरा का पूरा अप्रेज करेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंस करेंगे लोकल बिजनेस ऑफ होस्ट कंट्री, यानी कि जो हमें मोड ऑफ एंट्री चाहिए कि हाउ वी एंटर इन दैट कंट्री, वो सुटेबल हमारा वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट में चेंज है इनको भी हम स्टडी करना शुरू कर देंगे। प्रॉपर इंटरनेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी हम वहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे रिस्क रेज नहीं करेंगे। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट के अंदर जा रहे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस ले रहे हैं, मार्केट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, देन वी आर वेरी सेफ इन द मार्केट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, होप यू लाइक दिस वीडियो।